All right, hi everyone, welcome on board. So we got Dhruv Singh Bist. This guy got a 75 percentile last year cat and he got 99 percentile. And he says mocks was one of the reasons which actually pulled him up because उसने बहुत mocks दिए, इतने mocks दिए. मैं कितने mocks दिए होंगे तो टोटल मिला के सब मिला के तो मैंने मतलब बहुत 30-40 के आसपास मॉक फुल लेंथ दिए होगे और सेक्शनल तो मैंने 30-40 पर सेक्शन दिए होगे। क्या बात है. आज हम इसकी जर्नी करेंगे हाउ टू गिव मॉक, हाउ टू एनालिसिस मॉक, पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे इसका बिकॉज दीज गाइज आर द ट्रू सुपर हीरोज हु एक्चुअली डन इट देमसेल्व्स. और झूठ मत बोलना, तेरे पास मेरे पास डैशबोर्ड का एक्सेस है, मैं देख लूंगा तूने हाँ, कितने मॉक दिए कितने नहीं. बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, लेट्स बिगिन. तो पहला मॉक का कब कब दिया तूने एंड व्हाट शुड बी द जर्नी लाइक? So, sir, first mock I gave, so there is something like that 60 days. There is a total, you get an overview of every topic. After that, I gave my first mock. And उसके एक बाद मिनट, 60 डेज जिनको नहीं पता, देयर इज समथिंग कॉल्ड 60 डेज चैलेंज एट कैट किंग. पहले 40 डेज था, वो एक बार आपका खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम बोलते हैं मॉक देने शुरू करो. ठीक है, डन है. और जो लोग कैट किंग फैमिली के नहीं हो या ज्वाइन करने वाले हो तो भाई ये आपके साथ भी किया जाएगा. ठीक है, लेट्स गो. Yes. So like first mock मैंने तब दिया था after those initial 60 days overview. And उसके बाद like I also used to watch all the toppers video and everything like that, and they used to say how to analyze questions, how to analyze everything. So basically what used to happen with me, like I used to give mocks and then I used to analyze everything. So I used to analyze why did I mark a question in verbal that I did, like why did I mark that option, like if it is wrong, if it is right, you need to get to the root bottom point, why did you do that. In DILR I used to resolve all the DILR sets. I used to watch the videos if there is a easier way to solve that set, which I did. And in quant also I used to resolve each and every question, and I used to make a diary in which I used to write down the question. And also I used to write down which mock it is, like it is like RC1 or RC2, and I used to write down the question number as well. Like, वाह, okay, this is the question. Yeah. क्या मतलब मेहनत करी है तूने, ऐसे नहीं हुआ तेरा 99.02%. हाँ, सब मेहनत तो की है सर काफी। सुपर सुपर. पहला मॉक देना है मुझे. अभी मैं कौन से मंथ में दूँ? अभी जो मार्च अप्रैल चल रहा है. कैन आई वेट टिल मई जून? बाय व्हेन? व्हाट्स योर व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? अपना बता. Sir, I believe कि मतलब there are so many mocks in our Cat King mock system. Like there are proctored, there are also unproctored mocks, there are also sectionals. So like I think if you have done an overview of every topic, then you should give the mock tomorrow only. There is no point waiting till that long, because I do not believe that nothing good will happen. Mocks will give you a proper direction, like, okay, this is your weak section, this is your strong section, you need to focus more on this, and you need to okay, you can focus a little bit less on this topic as well. So I think कि mock तो जैसे आपका overview हो जाएगा for a student who is not a repeater, उसने तो तुरंत दे देना चाहिए. आई बिलीव कि रिपीटर्स ने तो मॉक से स्टार्ट करनी चाहिए पढ़ाई की, करेक्ट कि करेक्ट. मॉक पहले दो और उसके बाद उससे स्टार्ट करो. How so you were how close were your scores with the actual mocks as well? Because इसके score बड़े interesting आए by the way. And how are the quality of the real cat mocks when it comes to verbal ability and other thing? Were they actually real cat? You've given other coaching के mocks as well, right? मैं तो openly हाँ, बोलता हूँ, जिसको जो coaching के mock देने हैं सारे दो. एंड में कोई नहीं पूछने वाला भाई तूने इस कोचिंग की दी थी इसलिए तेरा बढ़िया है. सब दो भाई, सब जिसका जो दिल करता है दो, पर पक्का, पर मिनिमम दो कोचिंग की तो देने चाहिए, राइट? सर ऐसे मिनिमम दो कोचिंग वगैरह का तो मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने तो दिए थे. मैंने आपके मतलब कैट किंग के मेनली, और उसके बाद बाकी के मैंने दो बाद में और लगाए थे, वो टेल एंड पे लगाए थे. बट मेरे को लगता है कि फर्स्ट जो भी आपकी कोचिंग, लाइक ऑल द पीपल हु आर इन कैट किंग, जब तक आप 10 कैट किंग के मॉक्स नहीं दोगे तब तक कोई दूसरी कोचिंग के मॉक्स लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, बिकॉज तुम्हारे पास बेस ही बिल्ड नहीं हो रहा तुम्हारा. ना ही तुम लोगों को कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना ही तुम में इतनी डिसिप्लिन है एट दिस पॉइंट कि तुम वहां के भी 20 मॉक खरीदने के बाद वहां के भी तुम 10 या 15 मॉक दोगे. और वो डिसिप्लिन तो मेरे को लगता है सर एक पहले पहले एक उससे ही करना चाहिए, कि पहले एक से स्टार्ट करो. एंड आई बिलीव कि मतलब मेरे लिए तो मैंने कैट किंग के रियल कैट मॉक्स लगाए थे, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल टू मी. लाइक वर्बल एबिलिटी का भी मतलब जो क्वालिटी ऑफ वर्बल एबिलिटी थी, that was at par with the quality of verbal ability in the real cat mocks. जैसे मैंने in the real cat as well,
Like that's Actual what I'm cat. saying. The Actual cat, actual cat, actual cat. Superb, yeah. This is lovely. And how about the analysis? Were you able to attend those analysis? वो मोइनैक solve करता है जादू की तरह. Yes. Did you see हाँ those sir. videos in start? Yes, yes. I always used to watch that 99 plus percentile solving that paper, and I always used to watch that, and I always used to think कि इसका 10 मिनट पहले हो गया है पेपर खत्म होने के. I always used to think that, and the thing is कि if you have that access, if you are a Cat King family student and you watch and you go through that, the thing is that they explain the whole thought process, how they are thinking. It's not like that they are just solving and they are marking the question. They are putting in all their thoughts and they are saying कि ये थोड़ा लंबा लग रहा है, इसको बाद में करते हैं. Like ये एक्स क्यूब वगैरह आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पहले 1 और 0 डाल के देख लेते हैं, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे. This is even in verbal also, every option they used to say कि यार ये तो बहुत ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव है या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है. Yeah. Extreme option. एक्सट्रीम ऑप्शन, एग्जैक्टली एक्सट्रीम ऑप्शन है ये तो. और ये वाला तो इसलिए सही नहीं है, ये तो ऐसा बोला ही नहीं गया था. एंड दे आर सेइंग इट एंड दे आर डूइंग इट, एंड दैट हेल्प्स यू फॉर्मुलेट एंड क्रिएट योर ओन माइंडसेट कि हाँ ऐसा हो रहा है करके. दे आर दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग. सो वो स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है. मतलब मॉक्स तो अच्छे है, बट उसका जो एनालिसिस है, और उसका एक और एक एनालिसिस होता है जो बाद में लंबा एनालिसिस होता है, जो सुधांशु सर वीकेंड पे कराते थे. True. मतलब सैटरडे को मॉक होती थी, फिर संडे को वो एनालिसिस होता था. 12 से 3 बैठ के दोपहर को एक हाँ, सवाल सॉल्व. yes sir. सुपर यार, सुपर. तो मैं इनको ये बोलता हूँ, तुम 2 घंटे मॉक दे के आ जाओ, उसके बाद 2 घंटे मोइनैक तुम्हारे साथ लगाएगा, एफएमएस एलुमनाई, वो टॉपर अटेम्प्ट करेगा. वो स्टार्टिंग में लगेगा जादू कर रहा है, पर वो क्या हो रहा है, पर वो जादू से ही तुम्हें एक दो चीज़ें सोचनी, बिकॉज सोच के बोलता है, तुक्का भी मारना है, यार ये ऐसा लग रहा है, वो दिस इज and I'm not sure what other institute have that, but we're very proud of what Moinak has built over a period of time. And then सुधांशु तो आके एक सवाल सॉल्व करवाता ही है. सुपर यार, ग्रेट यार. लास्ट थिंग, मॉक्स में नंबर तो आते नहीं है ब्रो, ठीक है, हर बच्चा टॉप तो करता नहीं है. तेरा क्या सीन था? वर यू टॉपिंग इन द मॉक्स एज वेल? बिकॉज मैंने देखा कुछ लोग होते हैं, मे बी अराउंड 5 to 10% ऑफ द एंटायर पीपल. मैं अभी वही डैशबोर्ड पे तेरे को दिखा रहा था, तो 5 लाख प्लस टेस्ट हैव बीन टेकन ऑन द कैट किंग डैशबोर्ड, and unique around 1.27 lakh log, which is nearly half of the cat market. So it's really big number. But जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मॉक्स में नहीं फाड़ा उन लोगों ने, और एक्चुअल में फाड़ा. तेरा क्या सीन था? तो मेरे तो मॉक्स ऊपर नीचे होते रहते थे. अच्छा. लाइक कोई मॉक्स में मेरे को 100 प्लस भी मार्क्स आए, कोई मॉक्स में मेरे को कम भी मार्क्स आए, ऐसा था मेरा. So mocks are not the judgment of how you will perform on the actual day, but the thing is कि mocks will prepare you how to react on the actual day. कि जब कोई ऐसा सेक्शन आ जाता है जो बहुत डिफिकल्ट है, and you are not able to do it, how to react, how to find the easy question, how to guess. और जब कुछ ऐसा आ जाता है बहुत easy है तो कैसे solve करना करके. And I think our real cat mocks is a mix bag, कि किसी में ये डिफिकल्ट रहता है, किसी में ये डिफिकल्ट रहता है, किसी में दोनों डिफिकल्ट आ जाते हैं. एंड मेरे को इसलिए वो हर एक सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर करता है. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ द रियल कैट मॉक्स. और मेरे साथ भी वही हुआ था, अप एंड डाउन वाला ग्राफ था. बट आई ट्राइड कि मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा था कि टू पुश माई मिनिमम अप, कि मतलब मैक्सिमम तो मतलब दिन अच्छा रहा तो फिर तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे. पर अगर दिन खराब रहा तो तुम कितना अपने मार्क्स को ऊपर पुश कर सकते हो. दैट वाज ऑलवेज माय स्ट्रैटेजी, कि मेरे को मेरे मिनिमम को आखिरी 5 मॉक्स देखो, और उसमें मैंने जो मिनिमम है वो ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है. दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. सो योर नेक्स्ट मॉक का मिनिमम शुड बी मोर देन योर लास्ट मॉक का एनी मॉक का मिनिमम. अगर वो भी हो पा रहा है, चाहे वो 1 नंबर से भी ऊपर हो, यू शुड बी लाइक चल यार कुछ तो चल रहा है मेरा. बहुत ही बढ़िया यार. ध्रुव सिंह बेस्ट, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन. ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू कॉल्स. भाई की भाई तुम भी कमेंट करके इसको ऑल द बेस्ट करो. अभी तो इसकी कॉल्स आई हैं, देखो कहाँ जाके पढ़ रहा होगा. अभी एफएमएस की कॉल्स बाकी है, ये तुम्हारे भी विशेष ले लेते हैं, और स्ट्रीम को लाइक पक्का करेगा. Thank you so much once again, Dhruv, and God bless you, man. Keep the Cat King flag high wherever you go. Thank you, sir. Thank you so much. Take care. Bye-bye.